Hello and welcome to Pi Study YouTube channel. Today we will discuss about the application of derivative, tangent and normal and angle between two curves. So let us start. So, application of derivative होता क्या है? तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा पिछले मॉड्यूल में कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता और कुछ फार्मूले पढ़े। इसमें क्या करेंगे कि हम उस डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशंस है उसको रियल प्रॉब्लम के साथ कैसे यूज करेंगे, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इज़ गिवन देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड इफ़ this dy by dx is greater than 0 then it is called the increasing function. If it is less than 0 then it is decreasing function. So the dy by dx first derivative of function define the function is decreasing or increasing. If you will do dy by dx equal to 0, अगर dy by dx 0 हो गया then you will get some point of some value of x after solving the function. So x, if you will getting x equal to x1, x2, x3 like that, then this will become critical point. So if you have to find the critical point of the given function, then calculate the first derivative and take the derivative as 0, then you will get the critical point of this function. Now in a graphical way, if it is a graph of any function and you have 2 points x1 and x2, 2 points, then you will draw a tangent on any part of this function, and where the tangent dy by dx is equal to 0, this will set the limit of this function, range of this function. So in this way you can use the derivative concept where the tangent is 0, slope is 0. So this point define the some value of x in along the y direction. So next, if you have calculated d2y by dx2 and you will get f double dash x. So if d2y by dx2 is greater than 0, then it means it is a concave upward. If d2y by dx2 is equal to 0, then you will get x is equal to some points, that is called the inflection point. And if d2y by dx2 is less than 0 like this, if you will get this type of curve, then it is concave downward. So if you will combine both three conditions in a one condition, then you will get a plot like this. Like if concave condition is there and convex condition there, then concave downward and concave upward pattern will be passes through a point that is called the point of inflection or inflection point. So in this way you can know, after seeing the pattern of any function, at which point the function is concave downward and after which point the function is concave upward. Now if y is equal to sin inverse x, dy by dx is equal to 1 upon 1 minus x square, d2y by dx2 is equal to x upon 1 minus x square to the power 3 by 2. Plot this graph, so it will be kind of cubic. So in this case the point of inflection is this, passes through the origin, and this is concave upward and this is concave downward. Now draw the graph of y is equal to x cube by 3 minus 5x square plus 6x plus 3. Now how you will plot? So इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का dy by dx निकालेंगे, फिर इस dy by dx को 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 2 and 3. तो क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद इसको हम रियल लाइन पे ड्रा करेंगे, तो 2 and 3, एंड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx इज ग्रेटर देन 0. तो कहाँ पे dy by dx ग्रेटर देन 0 है, इधर 2 से इधर और 3 से इधर, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो अगर हम x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 7.66 एंड x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 7.5 आती है. अब हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे. तो जब हम इसको x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं हमारा पैटर्न ऐसे हो रहा, मतलब इन दोनों पॉइंट पे जो स्लोप है, जो टेंजेंट है,
वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट को देख करके कि यह दो पॉइंट पे एक्स के 2 और 3 पे यहाँ पे हमें 0 टेंजेंट मिलेगा, और इससे हम देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ से होकर गुजर रहा है। नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स। इसको कैसे ड्रा करेंगे, जस्ट कैलकुलेट एंड कंडीशन इज गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए, लॉग को सेटिस्फाई होने में क्या चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, दिस इज द कंबाइन ऑफ टू फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो यू विल गेट लाइक दिस। अब क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इसको 0 किए, अब इसको 0 करेंगे तो ई की वैल्यू तो कभी 0 नहीं होगी, तो ब्रैकेट में लिखा है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1/e मिल जाएगी, और x इक्वल टू 1/e पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। तो अब हम अप्लाई करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस केस के लिए x ग्रेटर देन 1/e आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप हमने यहाँ पे निकाला, जो डी वाई डी एक्स को 0 करके हमने पाया कि x की वैल्यू x इक्वल टू 1/e पे y की वैल्यू -1 है, मतलब यहाँ पे x/e पे y की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जो हमें कर्व मिलेगा लॉग का, उसका स्लोप 0 होगा। और और इस वाले इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, इस पे क्या x इज ग्रेटर देन 1/e, मतलब 1/e से जो बड़ी वैल्यू है वहाँ पे क्या मिल रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। और जब हम ये वाला करेंगे तो 1/e का स्लोप घटता होगा। तो हम जब लॉग यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो नेचर तो लॉग का होगा, क्योंकि लॉग ई एक्स इंटू लॉग एक्स लिखा गया। तो प्लॉट ऑफ द फंक्शन विल बी लाइक दिस, नेचर तो वही होगा, लेकिन हमें किस पॉइंट पे 0 टेंजेंट मिल रहा है, तो 1/e पे मिल रहा है। 1/e से आगे जाएंगे तो ये वाला मिलेगा, और जैसे 1/e से छोटे जाएंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट दोनों को मिला के हम इसका प्लॉट कर देंगे। और लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम 0 पे आके इसको टच करके छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ रूट ऑफ x³ - 3x² प्लस x - 3 इक्वल टू 0 एंड दिया है कि अल्फ़ा बीटा और गामा इसके रूट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा। तीनों के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उनको ऐड करके बताना कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का हमने फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है। हमें ये मिला कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट हुआ है, इस फंक्शन पॉजिटिव के लिए और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए मिल रहा है। फंक्शन डिक्रीज कहाँ वाला, इन बिटवीन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को x और y एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें स्लोप 0 मिल गया, तो उसको ड्रॉ कर देंगे 2 पॉइंट बना के। अब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन कब आ रहा है, जब इससे पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इधर इस पॉइंट से इधर जाएंगे, राइट हैंड से आएंगे तो हमें पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा, मतलब यहाँ फंक्शन का स्लोप बढ़ रहा है, तो इसको ड्रॉ कर देंगे। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें फंक्शन डिक्रीजिंग मिल रहा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसा ड्रा करेंगे कि हमें स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्लोप मिले, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ आएंगे तो स्लोप और घट जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक आएंगे तो हमें जो स्लोप मिलेगा निगेटिव स्लोप मिलेगा। तो हमने निगेटिव स्लोप के हिसाब से इसको ड्रॉ कर दिया। जब हम इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो हमें फिर इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहे, तो इधर का हमें इंक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ कर दिया। अभी इस यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। तो हम इस प्रकार से इस पूरे फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, जो इसके रूट है उनका उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा को ऐड करना है। फिर हम क्या करेंगे, अगर अल्फ़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने रूट हुए, यहाँ पे अगर हम रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक रूट ए हुआ, एक रूट ए हुआ और एक रूट ए हुआ, तीनों से हमें एक एक रूट मिल गया। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि उसका ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितना दी। तो इसका अगर हमने ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसका लेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये जस्ट
और जब इसका ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3 का ग्रेटर इंटीजर 3 होता है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है? टेंजेंट नॉर्मल के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कर्व। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी कर्व का टेंजेंट ड्रा करना तो आपको एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू दी हो। अब बात करते हैं, जैसे हमें एक कोई फंक्शन यहाँ पे f(x) दिया है और हमने एक पॉइंट लिया p जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो उस ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन y = f(x), अगर उस पर कोई, अगर इस पॉइंट को हम शिफ्ट करके इस प्लॉट पे ला देते हैं, तो इस प्लॉट पे जो ये पॉइंट है, जब इस पॉइंट से पास होके जाएगा, जब इस पॉइंट पे लाई करेगा, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी y1 माइनस f(x1) = 0, जब ये वाला पॉइंट इस प्लॉट पे है। और जब इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट नहीं है, जब इस फंक्शन का जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया इस पे पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट x1 y लाई नहीं कर रहा है, तो हम इस वाले टर्म को नहीं, ऐसा इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारा जो फंक्शन है इस पॉइंट से होके नहीं जा रहा है, तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द कर्व। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे दो केसेस होते हैं, या तो वो पॉइंट फंक्शन पे लाई करेगा ऐसे, या लाई नहीं करेगा। तो पहला बात करते हैं कि जब वो पॉइंट p इस पूरे कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं y = f(x), और इसका जब dy/dx निकालेंगे तो f'(x) हो जाएगा। अब dy/dx इस पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो f'(x1) मिल जाएगा। अब हमें जब टेंजेंट की स्लोप लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट के इक्वेशन में क्या लिखेंगे? y माइनस y1, जो इसका कोऑर्डिनेट हमने बता दिया x1 y1 p का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। अब y माइनस y1 = dy/dx, जो हमने स्लोप निकाला x1 y1 पर, इंटू x माइनस x1, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। जब भी टेंजेंट निकालना तो आपको जस्ट जिस भी पॉइंट से वो कर्व पास आउट करता है उसका dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फिर जिस भी पॉइंट से पास होके जा रहा है उस पॉइंट को यहाँ पे पुट करके f' उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, देन इस इक्वेशन में रख दीजिए y माइनस y = dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y = sin⁻⁴ cos x + cos x एट x = π/2 पे। अब हम यहाँ पे पहले बोल दिया कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। हमें ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन इस पॉइंट से होके जाएगा क्योंकि टेंजेंट इसी पे है। तो y माइनस जो लोकेशन ऑफ पॉइंट क्या होगा, y माइनस f(1x) = 0 ऑन द कर्व। तो एट x = π/2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब dy/dx निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बता दिया है, तो डिफ्रेंशिएट इसको कर दीजिए। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे, इस x = π/2 और y = 1 पे दो पॉइंट हमें मिल गए जिससे टेंजेंट पास होके जाता है, तो उस पर जो स्लोप है फर्स्ट डेरिवेटिव वो -1 आ गया। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 = dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। तो x1 π/2 है, y1 1 है। अब दोनों को ऐसे रख देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया, x + y = 1 + π/2। अब हम बात करते हैं कि जब वो पॉइंट जो हमने जूम किया है वो इस पे नहीं है, यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है या कहीं आउटसाइड, व्हेन द पॉइंट्स लाई आउटसाइड ऑन द कर्व, तो हम कैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे? तो पहला है कि पॉइंट क्यू लाई ऑन द कर्व। हमें एक मानना पड़ेगा कोई पॉइंट क्यू है जो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, वो लाई कर रहा है इस पे, इस जो कर्व है पे कहीं भी, और ये p पॉइंट जो आउटसाइड जो इस कर्व पे नहीं है, ये p पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, और एक q पॉइंट इस कर्व पे यहाँ पे है, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्लोप इक्वल टू कोऑर्डिनेट स्लोप। अब हम इस और इस पॉइंट को मिलाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों का स्लोप कितना है, पी क्यू का स्लोप क्या है। तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यह स्लोप क्या हो रहा है कि यह स्लोप क्या है कि इस कर्व पे, जहाँ पे इस कर्व पे पॉइंट क्यू का जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर है। तो dy/dx =
x2 एट x2 एंड y2, तो हमें ऐसा कुछ मिलके एक इक्वेशन आ गया। फिर क्या करना होता है, अब हम देखते हैं कि उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर फाइंड द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट p इक्वल टू 1 and 2। अब क्या है कि ये p 1 and 2 है, तो अगर हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो p का कोऑर्डिनेट है 1 2, ये इस कर्व पे ना होकर के कहीं दूर यहाँ पे है। अब हम मान लेंगे कि एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, वो कर्व पे लाई कर रहा है यहाँ पे। अब हम क्या एक काम करेंगे कि y2 इक्वल टू x2 स्क्वायर, हमें इक्वेशन मिल गया। जब इस पॉइंट से x2 y2 पॉइंट गुजरता है, इस एक कर्व है यहाँ पे x2 y2 जो पॉइंट है इस कर्व से होके जाता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो क्या हो y2 माइनस 2 x2 माइनस 1। अब क्या है इसका स्लोप, हम इसका स्लोप क्या निकालेंगे, यहाँ से 2x2 आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो y2 माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2x2। अब हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो x2 है, यहाँ से हम देखते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब कि इस इमेजिनरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ड्रॉ, अगर इमेजिनरी पॉइंट नहीं मिला होता और वो पॉइंट यहाँ इस कोई ऐसा पॉइंट मिलता जो इस कर्व पे लाई करता, और हम उसकी सहायता से x2 और y2 निकाल लेते, और x2 y2 जब हम निकाल लेते तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 टचेस द कर्व y इक्वल टू बी ई टू द पावर x बाई ए। अब हमें प्लॉट बताना है कि किस पॉइंट पे, मतलब इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है कि किस पॉइंट पे एक कर्व इस लाइन को टच करती है। उसके लिए क्या करेंगे, एक हम एज्यूम कर लेंगे, हमें पूछा गया पॉइंट, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट द पॉइंट इज x1 y1। अब यह पॉइंट इससे होके जाता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो इक्वेशन हो जाएगा x1 बाई ए प्लस y1 बाई बी इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, कर्व यहाँ पे दिया है, अब इस पे क्या होता है कि टच करता है मतलब उसका जो स्लोप होगा उसको निकाल लेंगे, इस कर्व का स्लोप निकालेंगे, x1 y1 पे ऐसा मिलेगा, और x1 y1 सेटिस्फाई करता तो ऐसा हमें इक्वेशन मिल जाएगा। फिर क्या होगा कि जो लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब अगर ऐसे कुछ करके कर्व था और यहाँ से लाइन पास होके जा रही थी, तो जो स्लोप की लाइन होगी वो कर्व की जो स्लोप होगा और उस लाइन का स्लोप होगा इक्वल होगा, तो उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b मिल जाएगा। तो यह जो हमें मिल गया x1 और y1 मिल गया, जो हमने पॉइंट एज्यूम किया था। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, हमने माना y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन को हमने प्लॉट किया। अब हमें ये तो टेंजेंट अपना हुआ जो इसको टच कर रहा है पी पॉइंट पे। अब इस टेंजेंट के नॉर्मल एक जो लाइन खींचेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि यह पॉइंट टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मली। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं उस फंक्शन का, देन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालते हैं, पी पॉइंट पे x1 y1 पे, ऐसे मिल गया। नॉर्मल का इक्वेशन जो होता है y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 प्लस x माइनस x इक्वल टू 0। अब इस जो नॉर्मल का इक्वेशन है, इस नॉर्मल के इक्वेशन में हम जितना भी यहाँ से निकाले हैं x1 y1, हमने पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया या हमने जूम किया सबको यहाँ पे डाल देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस एट x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और जो पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0 अगर इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इस 0 और 1 कोऑर्डिनेट मिल गया, इस 0 और 1 कोऑर्डिनेट पे हमें dy बाई डी एक्स मिल गया 2। अब नॉर्मल लिखना है क्योंकि हमें पूछा ही है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम अगर हमें नॉर्मल पता चल गया तो हम नॉर्मल से यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे y माइनस 1, फिर वो जो dy बाई डी एक्स था वो 2 है,
प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू आई इक्वल टू टू है, ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब जो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल के लिए क्या होता है कि जिस भी पॉइंट से नॉर्मल है तो नॉर्मल का एक इक्वेशन होता है कि डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ये क्या होता है, इक्वेशन जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द एनी पॉइंट। अब यहाँ पे ओरिजिन से निकालना मतलब 0 0 से निकालना है, तो ए और बी अपने आप 0 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, यहाँ x1 और y1 0 हो जाएगा, और सी क्या होगा 2 होगा, और जो अपना ए और बी है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा एंड C2 हो जाएगा। तो x1 y1 है क्योंकि ओरिजिन से जा रहा तो 0 हो गया, तो C मतलब 2 अपॉन रूट दिस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो हमें 2/√5 इसका आंसर मिल जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल included between the axis and any tangent to the curve is constant। तो हमें कर्व का इक्वेशन दिया गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें, ये जो इसमें x टू द पावर m है उस हमें निकालना है कि m की वैल्यू। अब m की वैल्यू के लिए कंडीशन दिया है कि जो ट्रायंगल का एरिया है, जो ट्रायंगल का एरिया है वो इनसे इंक्लूडेड होना चाहिए। जो इस कर्व पे एक हमने टेंजेंट ड्रा किया, इस टेंजेंट से ए वाली लाइन और ए वाली लाइन से मिलके जो एरिया बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व का हमें इक्वेशन पता है, और इक्वेशन पता, इस कर्व का इक्वेशन पता, तो इस कर्व से जो टेंजेंट पास आउट हो रहा है उसको हम निकाल लेंगे। तो dy/d हम और एक पॉइंट मानेंगे x1 y1, तो x1 y1 तो हमें dy/dx मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे लिख देंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के बाद हम एरिया क्या होगा, अब जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू x1 y इक्वल टू 0, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0, y का यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इसमें रखेंगे जब तक। फिर हमें एरिया क्या निकालना, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा करके हम एरिया निकालेंगे। अब बोल रहा है कि फॉर कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट एरिया के लिए क्या होता है, कांस्टेंट एरिया कांस्टेंट कब होगा, जब यहाँ पे जो x की पावर है वो 0 हो जाएगी, तो 1/1 माइनस m इक्वल टू 0, m की वैल्यू 1 हो गई। अब हम इस m इक्वल टू 1 के लिए एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू 2 भी आ गया। तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो m इक्वल टू 1 निकल गया आंसर। अगर किसी ने एरिया आपसे पूछा है तो जस्ट आप एरिया भी निकाल सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 2 भी, m इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करके। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व। अगर एक कर्व y इक्वल टू fx है और एक y इक्वल टू gx है, अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का क्या एंगल क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि fx का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको m1 हमने मान लिया उस पॉइंट पे जिससे वो क्रॉस कर रहे हैं, जिससे दोनों फंक्शन एक दूसरे से कट कर रहे हैं, हमने m1 निकाल लिया। उसी प्रकार m2 निकाल लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। अब हमें m1 और m2 मिल गया, तो दोनों के बीच का टेंजेंट का इक्वेशन होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तो हमें एंगल मिल जाएगा कि इसके और इसके बीच का एंगल क्या है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू b टू द पावर x। अब क्या करते हैं कि y इक्वल टू e टू द पावर x का dy/dx निकालते हैं, क्या होगा e टू द पावर x log a बेस ही, तो ये m1 हो गया। तो m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ log, यहाँ पे क्या है ln e a। तो अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो इसका स्लोप m1 इक्वल टू हो जाएगा ln a हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ये दोनों ए टू द पावर x के हैं, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे 0 और 1 से पास होते जाते हैं। अब 0 और 1 इसमें जब पुट करेंगे तो ये ln a हमारा m1 हो जाएगा। m2 इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y इक्वल टू bx डिवाइडेड bx लॉग, तो m2 इक्वल टू ln b हो जाएगा। अब हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 हमें पता है, m1 पता है और m2 पता है,
तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स पूरे का tan इनवर्स ले लेंगे तो हमें थीटा मिल गया दोनों के प्लॉट के बीच का। तो इस प्रकार से आसान क्वेश्चन हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कहाँ पे यूज करते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया। सो आई सजेस्ट यू नेवर गिव अप लर्निंग, लर्न थिंग्स कॉन्टीन्यूसली विद द पाईफाई स्टूडियो यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।